نہیں، ہم اس کا جواب ہمارے سے جتنا سخت سخت سوال کر سکتے ہیں کریں، ہم اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے اگینسٹ میں جب پھر ہم سوال رکھیں گے، کوئی عبارت پیش کریں گے، پھر اس کو بھی برداشت کرنے کا حوصلہ رکھیں۔ پھر اتنا تو حوصلہ ہونا چاہیے نا، اگر یہ سخت سوال ہم سے یہ کر رہے ہیں۔ اچھا اب انہوں نے دنیا کا اتنی بات کوئی بتائی ہے، مہذب پھر معاشرہ اس سے آگے تھوڑی بات میں بڑھاتا ہوں، آگے پھر کیا ہوا جب انہوں نے یہ سوال ہی میری ہم سے پہلے تو کرنا سن ہے لینا بات، تو پھر یہ سوال کرنے کا مقصد ہی میں میرا سرسری سے وہاں کر پہ رہا جو ہوں، سخت نہیں بات ابھی ہو رہی بحث تھی نہیں نا، آپ سے میں کر رہا، جو سخت اس بات پہ زبان بحث وہاں نہیں پہ کر رہا۔ پہلے سے استعمال ہو رہی تھی، اس کے تناظر میں یہ سوال کیا گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کے بعد عمر بھائی اس بات کو ختم کریں، یہ آگے بڑھتی جائے گی، نہیں تو میں بھی پھر ان سے مانگوں گا ویڈیو پروف مانگوں گا کہ گالی کہاں دی میں نے۔ میں اسی لیے ختم کہہ رہا کریں ہوں اس کہ معاملے کو۔ میں جب آپ آپ بولنا بات شروع کر کریں گے دیتا نا، ہوں۔ چلے امن میاں بھائی صاحب آپ ایک آخری بات سے عامر بھائی، اس کے بعد آگے جب انہوں نے یہ سوال کیا نا کہ جب شریعت نہیں ہے تو پھر نکاح کیسے ہے، تو وہ مانی نے پھر جو ہے وہ ایک سیرت پڑھی ہے جس میں ان کو بھائی کو بتایا ہے کہ جب نبوت نہیں تھی آئی تو ان کی پہلی شادی حضور کی کیسے ہوئی، یہاں سے بات بگڑی۔ اگر اس طرح کا یہ سوال کریں گے آگے وہ تو تو پھر میں آگے نے سے کس سوال طرح کا سنا ہی جواب نہیں دے ہے، سکتے وہ ہیں؟ تو میں چلا گیا تھا، میں یہ بات سنی ہی نہیں ہے، وہ جب گالیاں دینے لگے میں چلا گیا، میں پھر ٹکا نہیں ہوں۔ لیکن اگر اس کے اوپر بھی وہ تو شریعت ابراہیمی پہ وہ چلیں، عمر بھائی بیٹھے ہیں، ضیاء بھائی بیٹھے ہیں، بات کریں گے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جب ایک غلط بات ہو جاتی ہے، غلط واقعہ ہو جاتا ہے نا، وہ ایسے ہی ہے جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا بھی کھن کھولو گے پاڑو گے تو لیرا ہی نکلنی، اس میں سے کچھ نہیں نکلنا۔ جب گالم گلوچ ہوگی، گستاخیاں ہو گئیں، شاتمیت ہوگی، ان کو آپ دوبارہ ریپیٹ کریں گے، صفائیاں دیں گے ایک دوسرے پر، سوال جواب کہ میری نہیں غلطی، آپ کی غلطی، آپ کی نہیں میری غلطی، تو کچھ نہیں نکلے گا اس میں سے۔ وہ لیرے ہیں سارے، اس کو چھوڑ کے جو انہوں نے بات کر دی ہے، میرے خیال میں جو انہوں نے آ کے معذرت بھی کر دی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ کافی ہے۔ غلطی جب ہم خود تسلیم کر رہے ہیں کہ ہماری طرف سے پہل ہوئی ہے، زیادتی ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، ہمیں محتاط زیادہ رہنا چاہیے۔ کیوں؟ ہمارے جذبات، ہمارے احساسات مقدس ہستیوں سے جڑے ہوئے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں اس بات کی، تو لہٰذا ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ عامر بھائی مجھے ایک منٹ بات کرنے کی اجازت دیں۔ جی کریں۔ آپ کی بات جب پوری ہو جائے تب آپ کر لیں بات۔ ہاں، میری اتنی سی التجا ہے کہ بھائی یہ جتنے بھی بنی اسرائیل والے ہیں، میں ان سے بات نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ ان کو صرف اتنا ہی کہتا ہوں کہ بھئی میں آپ لوگوں کو گفتگو کا لائق ہی نہیں سمجھتا۔ اب آپ جائیں گے اپنے آپ کو علامہ شو کرنے کی کوشش کریں گے اور یہی تو نکلے گا بعد میں، تو ہمیں احتیاط کر لینی چاہیے کہ بھئی ان سے منہ لگانے کا کیا فائدہ؟ آپ ہی ملامت ہیں۔ اگر آپ ان کو گفتگو کے لائق سمجھتے ہیں تو یہی نتیجہ نکلے گا۔ پلیز عمر بھائی اجازت ہے، ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پیر صاحب نے ہم سے یہ بولا، یہی ریکویسٹ ہم پہلے سے کر چکے ہیں۔ جب ایک دفعہ پیر صاحب سے پوچھا تعین اور نازل میں کیا فرق ہے، یہ نہیں بتا سکے، تو ہم نے خود پہلے سے اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم پیر صاحب کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ہم ان سے گفتگو کریں۔ تو بعد میں پیر صاحب ابھی اپنا موقف بتا رہے ہیں، اچھی بات ہے، ہمارا خود یہی موقف ہے ان کے بارے میں۔ ٹھیک ہو گیا، برابر ہو گیا صاحب، نہ آپ ان کو اس قابل سمجھتے ہیں نہ وہ آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں، بات ختم۔ آپ تو دونوں بری ہیں۔ جو لوگ بحث کرنے جاتے ہیں آپ سے یا الجھنا چاہتے ہیں، ہم نے تو صرف ان کے آگے یہ بات رکھی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ پیر اسقانی بھائی یہ بات کیوں کرنا چاہتے ہیں، میرا خیال ہے ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب بات ہے ہی کوئی نہیں، بات ختم ہو گئی ہے، تو اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہیے اور آئندہ کے لیے محتاط ہونا چاہیے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے جو ایمانی جذبات ہیں وہ زیادہ حساس ہیں، کیونکہ جن لوگوں کا ایمان شخصیات کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، ہستیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، وہ زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے۔ جن کے پاس صرف تھیوری ہوتی ہے، وہ تھیوری تو موڈیفائی بھی ہو جاتی ہے، اوپر نیچے ہو جاتا ہے نا، تھیوری کے ساتھ تو کام چل جاتا ہے، لیکن ہستیوں کے ساتھ موڈیفکیشن نہیں چلتی بھائی جان۔ جو ہستیاں ہیں، جنہوں نے ہستیوں کو مانا ہوا ہے، نبیوں کو مانا ہوا ہے یا اللہ کی ہستی کو، ذات کو مانا ہوا ہے، تو اس کے سامنے جب کوئی اس طرح کی بات کرے گا تو اس کے ایمانی جذبات کو ٹھیس پہنچے گی۔ اور یہ دیکھ لیں کہ ماضی میں وہ ایمانی جذبات کو ٹھیس پہنچنے کے نتائج کیا نکلے ہیں۔ غازی علم الدین شہید کا واقعہ، ممتاز علی قادری کا واقعہ،
इसी तरह से और कई दीगर वाक़यात हद तक भी चला जाता है। बंदा ये समझो कि ज़हन ही माउफ हो जाता है, वो फिर पॉजिटिव सोचता ही नहीं कि मैंने अब इससे दलील से बात करनी, नहीं, वो अपने आप से बाहर हो जाता है। तो क्या ही बेहतर हो कि हम इस दरिया में उतरने से पहले सोच लें कि ये कहाँ तक हमें लेकर जाएगा। तो हमें ज़रूरत ही नहीं है भाईजान इस तरह की बहस में और इस तरह के उलझाव में जाके उलझने की। मैं यकीनी तौर पर फिर दोहरा के अपने भाइयों की राय से ये कह रहा हूँ, ज़िया भाई का, मेरा, दीगर साथियों का इत्तफाक है इस बात पर, सब ने कहा है मुसलमानों ने कि गलती हमारी तरफ से ज़्यादा हुई है। इसलिए मैं कह रहा हूँ 70% गलती हमारी होगी अगर दोबारा ये वाक़या होता है। 30% ये है कि अगर उनकी बुराड पर होती है तो फिर 30% है, अगर हमारी बुराड पे होती है तो फिर 100% है। अगर हमारी बुराड पर ये लोग आकर कुछ इस तरह की करते हैं तो 100% हमारी गलती है, फिर उनका कसूर ही कोई नहीं। हमें अपने अक्ल के नाखून लेने चाहिए, जाके अपना दिमाग चेक करवाना चाहिए किसी डॉक्टर, लेकिन उनकी बुराड पर अगर होती है तो 30% उनकी ये ज्यादती और गलती है। उनको भी समझना चाहिए कि भाई ये तो नासमझ हैं, बच्चे हैं, शायद जज्बाती हैं, लेकिन अगर हम वो बात करेंगे जिसके साथ इन सब मुसलमानों के जज्बात जुड़े हुए हैं, एहसास जुड़े हुए हैं, तो सबको हर्ट होगा, सब सारे हर्ट होंगे। तो हम इनको किक आउट कर दें। अगर ये हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम इस तरह की बात करें जो नहीं करनी चाहिए, तो हम इनको किक आउट कर सकते हैं ना, बुराड तो हमारी है ना, तो इनको बाहर निकाल दें, ब्लॉक कर दें, म्यूट कर दें, फारग करें। यहाँ तक बात। मैं ये भी आपकी वजह से, आमिर भाई, आपसे मेरी काफ़ी दफ़ा बड़े अच्छे और महज़ब अंदाज में गुफ्तगू हुई है। आपसे और खलीफा से मेरा बड़ा प्यार है। मैं इसलिए गलत फहमी दूर करने आया था कि इससे पहले बात कोई गलत फहमी एक दूसरे के दिल में आए, तो ये मैं बात जो है क्लियर कर आता हूँ। बाकी एक दफ़ा फिर माजरत करता हूँ अपने भाइयों की तरफ से, और बहुत शुक्रिया लेने के लिए। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया भाईजान, जिन्होंने आके इतना बड़ेपन का मुजाहरा किया है, बड़े ज़रफ़ का मुजाहरा किया है। वरना आप पर कौन सी पाबंदी है? आपको एहसास हुआ है कि उनके जज्बात हर्ट हुए हैं, तो आपने बड़ी बात की है। मैं समझता हूँ हमारे साथियों को आइंदा होश के नाखून लेने चाहिए। कम से कम मैं किसी ऐसे बंदे के साथ जुड़ा हुआ नहीं हूँ, और ज़िया रसूल भाई भी ऐसे किसी बंदे के साथ जुड़े हुए नहीं हैं जो अपनी गलतियों की वजह से नौबत यहाँ तक पहुँचा कर आएंगे और आके हमें कहेंगे ये हो गया, वो हो गया, बाइकआउट कर दो, ये वीडियो देखो, वो वीडियो देखो। गलती हमारी अपनी है, हम क्यों इस तरह की बात तक नौबत पहुँचने देते हैं? अब सोशल मीडिया पे आके तबलीग करनी है और मर्दम शनासी है नहीं, पता नहीं जिस बंदे से मैं बात कर रहा हूँ इसके अंदर ख्यालात क्या चल रहे हैं, इसको कोई परवाह है कि नहीं हमारे मतलब बात करने की, या किस हद तक ये जा सकता है। अगर इसका एहसास ही नहीं, अभी कोई बात खलीफा साहब करने लगे थे ना, तो मैंने इनको कहा था कि आप सवाल तो कर रहे हैं, लेकिन पहले मुझे ये बताएं कि इस सवाल का जवाब क्या होगा। आपको पहले पता होना चाहिए कि मेरे इस सवाल का वो जवाब क्या देंगे, फिर सवाल करें। अगर इतना नहीं पता तो सवाल करने की जरूरत ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका। जब मेरी रिक्वेस्ट है अभी नियो से भी, वकास से भी और आसिफ चौधरी साहब से भी कि सिर्फ एक ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ऐसे किसी भाई से सामना होता है कि जो रेगुलरली आपके साथ ट्रबल क्रिएट हो चुकी है जिनकी, या जिनके साथ आपका मामला एक दफ़ा हो चुका है, आप काइंडली फिर उनको दावत किताब या ऊपर ना लिया करें फिर ना। जाहिर यार खलीफा ये बिल्कुल ये हमारे दोस्तों की भी बड़ी, ये पता नहीं कौन उठा लेता है, या मैं बता दूं यार, पहले भी बता रहा था। अच्छा आमिर भाई, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, कॉल आया था, अगर इजाज़त दे तो थोड़ी सी कर लें बात। जी पीर साहब कर। देखिए, बात यह है कि हमारा इनसे कोई दुश्मनी नहीं है। आप जानते हैं कि ब्रॉड इन्हीं का था और इनके हाथ ही में ताकत थी। अगर किसी ने गाली दी है, हमारे ब्रॉड पे आके कोई गाली दे, हम सीधा उतार देते हैं। अगर किसी भाई ने गलती की और आपका इरादा वाक़ईतन शातिमियत का नहीं है, तो आप सीधा उसको जो है वो गाली देकर उतार दो। हम यही करते हैं। यहाँ आपको कोई गाली देकर दे, हालांकि हम आपको अच्छा नहीं समझते, ख्यालात नहीं मिलते, लेकिन आपको गाली देकर दे कोई, सीधा उतार देते हैं। आप नहीं उतारते, आप चाहते हैं शातिमियत। तो हमारी भाई की अगर गलती है, उन्होंने गाली दी है, लेकिन आपने शुरुआत, आप चाहते हैं शातिमियत, तो भाइयों से बिल्कुल तहे दिल से इस बात को कोई जज्बात में ना ले। भाई आप अपने आप को अल्लामा समझते हैं तो ये आपकी गलती है। इनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो चाहते ही शातिमियत, लेकर जाएंगे बात को शातिमियत की तरफ।
आप समझ रहे हैं, इनका इरादा कोई समझने का नहीं है। तो आप प्लीज़ इनसे बात मत कर लें, ऐसा ना हो कि आपकी वजह से शातमियत हो। इतना ही मुझे कहना है। फिर अस्कानी भाई ये बात पहले हो चुकी है, हमने ये मान लिया है, फर्ज कर लें, एक मिनट अवकाश साहब, हमने ये पहले से मान लिया है कि भाई उनको तो कुछ परवाह नहीं है, वो ले जाएंगे बात उस तरफ, ये तय होगी ना बात। अब उनके सामने करने की हमें क्या ज़रूरत है? हमें चाहिए ना कि जब वो उस तरफ लेकर जाएंगे, हम जाएं क्यों वहाँ पर? जिस तरह आप कह रहे हैं कि हमें अलामा फामा बनने की ज़रूरत क्या है? जो 100 दफ़ा कॉल डाला भाई, मैं नहीं गया, क्यों नहीं गया? क्या जवाब देंगे गाली का? गाली का क्या जवाब देंगे आप बताइए? इसलिए मुझे उन्होंने यही, और ये चैलेंज कर रहे थे, यही बनी इसराइल गाली दे देकर, इनके बड़े को लाओ, इनके बड़ों को ला कर आओ। भाई बड़ों की क्या गलती है? तुम्हारा किसी के साथ झगड़ा है, उसको कोसो, उसको पकड़ो। अगर वाकईतन आप में ज़रा भी इंसानियत है, जिसने आपको गाली दी है तो उसी को कहो। उसको छोड़ दे, जो हो गया सो हो गया। हाँ, उसको हम तो छोड़ देते हैं भाई, हम तो छोड़ देते हैं। अपने भाई मलामत है, मैं वही तो कह रहा हूँ, अपने ही भाई मलामत है। क्यों आप उनसे बात करते हैं? वजह क्या है? इसकी वजह मैं जानना चाहता हूँ। क्या आपकी बात को वो समझेंगे? आपकी बात को नहीं समझेंगे? इनको ये पता नहीं, पहले इनको पता होना चाहिए कि इन सवालों के जवाब इनके पास हैं क्या। ये सवाल चलें, ये इन्होंने किया, वो उधर सिख भी कर रहे हैं या कोई और क्रिश्चियन भी कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए। हम में से मेरा ख्याल है बहुत सारे ये जो हमारे भाई हैं, हमें प्यारे हैं, नौजवान हैं, लेकिन इनके पास सिर्फ जज्बात हैं, इनको पता नहीं है इसकी ईमानी और शरई हैसियत है क्या। सवाल का जवाब तो पहले पता होना चाहिए। तारीख में बहुत सारी बातें भाईजान ऐसी दर्ज हैं जो हमारी नज़र में भी गलत हैं, ना सिर्फ गलत हैं बल्कि मुगल्लिज़ हैं वो बातें। और यहाँ तक मैं हवाला दे सकता हूँ, सबूत पेश कर सकता हूँ। हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने लिखा कि ये फ़लाँ फ़लाँ मुफस्सिर ने जो अपनी तफसीर में लगव बातें लिखी हुई हैं, हम तो उनको अपने कलम से लिखने के भी रवादार नहीं हैं। अब वो भी मुफस्सिर हैं, अपने आप को वो भी मुफस्सिर ही समझते हैं जिन्होंने वो बातें लिखी हुई हैं, लेकिन बेसनद बातें लिखी हुई हैं। जो बात भी बेसनद है, वो तारीख़ तबरी की हो, वो सीरत हलबिया की हो, वो किसी तारीख़ अल-बदाया व नहाया की जो तारीख़ की है, उसकी सनद नहीं है, वो काबिल कबूल नहीं है, वो हुज्जत नहीं है। हमारे लिए हुज्जत सिर्फ कुरान और हदीस है। हाँ, सही हदीस हो उसको हम अमल करते हैं, कुरान को, सही हदीस को हम अमल करते हैं। उसमें आपको लगता है कि उसमें भी कुछ इस तरह की चीज़ पाई जाती है, तो हमारे से सवाल का जवाब ले लें, हम उसका कोई तवील माकूल जो दुरुस्त अकल के भी मुताबिक हो, नकल के भी मुताबिक हो, वो करके जवाब दे सकते। लेकिन ये जो तारीख वगैरह की किताबें, इनकी तो कोई, ये हमारे अपने भाइयों को भी नहीं पता। तो आंसर को म्यूट कर दें। आमर भाई, बनी इसराइल मेरे एक मिनट दे दो, मैं नीचे चला जाता हूँ फिर आप। आमर भाई, मैं जिंदगी में आपकी ब्राड पर एक दफ़ा आया था, सुनते सुनते जब वो आपको याद होगा, फिर वो अरफान मशहदी साहब की बात थी, तो मैं जानता था उनको, तो मैंने आपको वो पैगाम दिया था, आपको याद होगा शायद। इसके अलावा जब आप गुफ्तगू करते हैं, मैं नीचे सुनता रहता हूँ। ज़िंदगी में कोई मेरा कामट आपको नीचे, ये खलीफा भाई हैं, डॉक्टर डैरिंग हैं, ये अहमद भाई की जो ब्राड भी है, मैं कभी कभी आकर आप सबको सुनता रहता हूँ। कभी नीचे ना मैं ऊपर आने की कोशिश की, ना मैंने कभी कोई नीचे लिखने की कोशिश की। अच्छी लगती है जब आपकी बातें, इल्म के लिए सुनता रहता हूँ। कभी पंगाबाजी जो है मेरे वो दानिश में नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी बंदा जो हमारी ब्राड पर, ये अब्दुल्ला भाई है ना, ये अगर इनको ना लो, नीचे आकर ये कामड़ शुरू कर देते हैं। वो एक दो और भी दोस्त हैं यार। पहली तो बात है, अगर आप गुफ्तगू कर सकते हैं मौजूब तरीके से, बिस्मिल्लाह। अगर नहीं तो छेड़खानी ना करें। कुछ ज़रूरत नहीं है कि हम एक दूसरे से उलझें और बदतमीज़ी करें। मैं खुद ज़ाती तौर पर ये खलीफा भाई से कभी कभी मैं तो नियो मिन्नत करके इनको कहते हैं, भाई ऊपर आओ यार, गुफ्तगू करें। ज़रूरी नहीं है कि हम इस्लाम की हर वक्त को और भी गुफ्तगू कर सकते हैं, प्यार मोहब्बत से भी, लेकिन तमीज़ के दायरे में करें तो सबसे बेहतर होता है। अच्छी बात, मेहरबानी, अच्छी बात, मेहरबानी। आमिर भाई ज़रा एक मौका दें बात करने का। जी। देखिए, पहली बात तो ये है, जो पीर अशकानी साहब ने इल्ज़ाम लगाया, मैं इसको इल्ज़ाम कहूँगा कि ये लोगों का मकसद सिर्फ शादमियत है। अगर सिर्फ हमारा मकसद शादमियत हो, मैं बज़ाते खुद हम जो 4-5 बंदे हैं जो मतलब कि बाकी भाइयों से इल्मी लिहाज से, क्योंकि हमारे पास जो है मतलब किताब के अंदर से भी आयात हैं, उसके अलावा अहादीस और बाकी रेफरेंसेस भी मौजूद होते हैं एट अ टाइम।
तो हम मोस्टली हमारी कोशिश होती है हम दलील के साथ बात करें। अगर हमारा सिर्फ मकसद सादमियत हो तो आप डेली बेसिस पे सिर्फ हमारी ब्रॉड पे सादमियत ही देखें, लेकिन हमारा मकसद ये है ही नहीं। जब कभी भी हमारे किसी भी भाई की ब्रॉड के ऊपर बिठा कर चुप करवा कर करेक्टर असैसिनेशन होती है, उसकी ज़ातियात पे अटैक होता है। एक ब्रॉड का नहीं मैं कह रहा, मैंने बहुत सारी ब्रॉड्स पे देखा है हमारी सिस्टर्स जो कि हम ख्याल है हमारी, हाँ हमारा उनके साथ भी इख्तलाफ है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप उनके सामने दलाइल रख के उन दलाइल को उनके ऊपर फिट करके और उसके बाद उनकी करैक्टर असैसिनेशन करें। जब भी कभी ऐसा रिएक्शन हमें मिलता है तो हम फिर मजबूर होते हैं, क्योंकि हम जो आपके वालिद हैं या वालदा हैं हमारे लिए मोहतरम है, हमने कभी उनको कोई गाली नहीं दी, लेकिन हम सीधा फिर अकाबिर पे इसलिए बात करते हैं कि ताकि ये दोबारा इनके लिए एक नसीहत हो कि ये हमारे भाइयों की हमारी बहनों की करैक्टर असैसिनेशन ना करें। लेकिन हमने कभी जो पहल वाला मामला है हम नहीं करते, हमें ज़रूरत ही नहीं है। हम आपस में मोस्टली ये होता है, हमारा तो ग्रुप है, हम आपस में डिस्कशन करते रहते हैं और हमारा मोस्टली ब्रॉड लगाने का मकसद ही ये होता है कि हम आपस में डिस्कस करें। जो जिस भाई के भी कोई सवालात हैं हम तो सबसे पहले खुद से सवाल करते हैं, उन सवालात को उठाते हैं, फिर उनका जवाब तलाश करते हैं। तो इस तरह से हम बात को लेके चलते हैं। बाकी दूसरी बात मैं ये करना चाहता था कि ब्रॉड जो है वो बहुत सारे बंदे लगाते हैं, कुछ ब्रॉड्स पे हमारा कंट्रोल होता है, कुछ ब्रॉड्स पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। अगर उस जगह पे ऐसा कोई मामला होता है, गालम गलोच होती है, या तो हम उसको डिसऑन कर देते हैं या हम नीचे उतर आते हैं, ये दो ही मामला होते हैं। तो इसलिए जो हमारी जो पर्सनल ब्रॉड्स लगती हैं उनमें जितने भी भाई हैं उनसे मैं ज़ाती तौर पे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि नेक्स्ट टाइम इस चीज़ में वो जो है वो केयरफुल रहें। हाँ, अगर आपकी तरफ से फिर दोबारा आपसे मुराद के जितने भी ये मुसलमान हैं कोई ऐसा रिएक्शन हमें मिलता है, हमारे पास तो रिकॉर्डिंग मौजूद हैं, लेकिन हमारा कभी मकसद नहीं हुआ कि हम जाके लोगों को रिकॉर्डिंग पेश करें कि इन्होंने ये किया वो किया, इस तरह से हमारी तजलील की है। हम नहीं करते ये काम। अगर ये काम ही हमने सिर्फ करना हो ना तो हमारे पास ऐसी ऐसी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, लेकिन हमारा मकसद ही नहीं है। हमारा मकसद है कि एक महज़ब गुफ्तगू हो, इल्म की जांच पड़ताल हो, जो सही इल्म साबित इल्म है उस इल्म को ले लिया जाए, बाकी को छोड़ दिया जाए। तो मेरा अगेन आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आपकी अप्रोच जहाँ जहाँ तक है, हमारी अप्रोच जहाँ जहाँ तक है दोनों साइड पे, तो हमारी भी कोशिश यही होगी कि हमारी तरफ से आपके अकाबिरीन की तजलील ना हो, आपकी तरफ से हमारे तो अकाबिर कोई नहीं है, हमारी करैक्टर असैसिनेशन ना हो। जब करैक्टर असैसिनेशन होगी तो सीधी बात है अकाबिर पे बात जाएगी। ये मैंने बारहा बार ब्रॉड पे ओपनली कहा है, हर ब्रॉड पे, तकरीबन हर ब्रॉड पे मैंने ये ओपनली कहा है। नहीं, इसका हमने अमले मुजाहरा भी देखा है। ये न्यूज़ साहब के साथ मेरा ख्याल है तल्लत मलक साहब ने कोई की थी, तो इन्होंने मिर्ज़ा साहब की खटिया खड़ी कर दी थी, काफ़ी दिन तक वो सिलसिला चलता रहा। तो जाहिर है कि आपको कोई परवाह नहीं है, आप कर सकते हैं, आज़ाद हैं आप, लेकिन फिर भी आपने आके अच्छे अंदाज से बात की है और जितनी भी बात आपने की है, मैं अपनी तौर पर मैं कह सकता हूँ कि आपने मेरा दिल जीत लिया है, दूसरों का मुझे पता नहीं है। मैं खुश हुआ हूँ आपकी बात सुनकर और आपका मौक़िफ़ जानकर कि आप ये चाहते नहीं थे, आपके ना चाहने के बावजूद हुआ है ये आपकी ख्वाहिश नहीं। आमिर भाई ऐसा नहीं है, आमिर भाई ऐसा नहीं है। बात यह है कि उन्हीं का कंट्रोल था। अगर वो शातियत नहीं चाहते, जिस भाई ने भी गलती की, आमिर भाई मुझे आप बता दीजिए क्या प्रूफ मिला था और कंट्रोल मिला था? भाई अगर आपको किसी ने गाली हम उनको कैसे पिरस्कानी भाई हम उनको कैसे पाबंद कर सकते हैं? कानून बना के हम उनको लिख के दे सकते हैं? भाईजान नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। अगर आपके ब्रोड पे यहाँ पर कोई माई का लाल आकर बनी इसराइल को गाली दे दे, देखो मैं उसको क्या करता हूँ, शरीफ आदमी। भाई यहाँ पर मिर्जा कादियानी को गालियां दी जाती हैं, कितना कुछ आप उनको कर लेते हैं, कितनों को गोली मार देते हैं। करता हूँ मैं, उसको उतार देता हूँ। भाई एक बार हो जाता है, कई बार चल भी जाती है, ना चाहते हुए भी हो जाता है। आमिर भाई आप बात को समझे, हर टाइम तो आप ब्रॉड पर नहीं होते ना। एक मिनट, नहीं, कल की बात हो रही है बनी इसराइल साहब, कल की बात हो रही है। मुकम्मल आपके सरपरस्ती में, आप ही के हाथ में सारा कुछ था, आपने सारा कुछ कातिमियत कराया और की। आपको फिर अस्कानी भाई वो आजाद हैं, मेरी बात सुने, इसको ना खींचें बात को, ना मैं इसको बात को ना खींचें। आमिर भाई मेरी बात सुने, उन्होंने अपनी बात की ना, आप मेरी बात सुनिए ना भाई। जिस मुगालते में ना रहे उसको बात, आखिर वो इंसान है, उसको बात ये समझ में आनी चाहिए कि भाई कंट्रोल आपके हाथ में था या नहीं था?
अगर आपको गाली दे दी दिया गई ना थी, 70 हाँ, अगर आपको गाली दे दी गई थी, उसकी गलती है, उसको 100 गाली देकर उसको उतार देते। हाँ, मैंने ये कहा है पीर अस्कानी भाई, ये बात। लेकिन ये आप धोखाधड़ी करते हैं कि नहीं नहीं हमारा मकसद नहीं है, शातमियत नहीं है। ना 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 ना, आप चाहते हैं भाई पीर अस्कानी भाई, जब मैं गया था ना कल, तो मुझे नहीं पता ये कौन है कौन नहीं। मैं तलत की ब्रॉड देख के चला गया, और जब ये बात शुरू की ना तो ये आपस में मजाक कर रहे थे, और फिर जैसे मैंने बात शुरू की तो इन्होंने अकाबरीन की तौहीन की। हालांकि कोई बात मैं ना की थी, ना इन्होंने मुझसे सवालात जो है ना वो अकाबरीन की तौहीन पे की। वो जैसे जैसे बात आगे बढ़ी तो मैंने देखा कि ये तो फिर कादियानी नहीं है। कसूरवार है, मेरी बात सुन लीजिए। नजर में वो कसूरवार है, उनकी नहीं, नजर में नहीं, कसूरवार की बात मैं नहीं कर रहा। हाँ मेरे भाई, बात क्या है पता है क्या है? कभी भी हम जो है धोखाधड़ी से बात नहीं करते, साफ शफाफ। हमारी भाई की गलती मान लीजिए, उस्मान की मैं मानता हूँ, आप उस्मान को 100 गाली देकर उतार देते, शातमियत क्यों शुरू की? आपके हाथ में, हाँ बरोड उस्मान का हो, उस्मान ने आपको गाली दी हो, तब आप कहें कि उस्मान की गलती है, क्योंकि उसके हाथ में सारा- नहीं, पीर अस्कानी भाई, जी भाई क्या हम नहीं ऐसा करते कि यहाँ आके कोई चाहता है वो करता है, हमें गाली देता है, हम बदले में वही गाली नहीं मवान आप में वो मिर्जा कादियानी की तरफ लौटा देते हैं? क्या नहीं हुआ कभी ऐसे? ना 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 ना, आप कभी भी आमन नजीर भाई, मत कीजिए आपकी ऐसा। बात सही है। आमन नजीर भाई, क्यों ऐसा कर रहे हो? पीर साहब एक मिनट। आमन नज़ीर भाई, आपकी बात भी दुरुस्त है, पीर आस्कानी भाई की बात भी गलत नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ वकास साहब से एक बात करना चाहता हूँ। वकास साहब, अच्छी बात है आपने जो अपने ख्यालात का इजहार किया। कल भी आपने साफ अल्फाज में कहा था कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम ऐसा करेंगे, तो वो हमें भी ऑलरेडी पता है। मैंने कुछ अर्सा पहले भी आपको एक बात कही थी, और ये बात मैं किसी ज़िदबाजी से नहीं कर रहा। आपको पता है मैं आप लोगों से ज़िद नहीं लगाता, मैंने कभी आप लोगों से कोई बदतमीज़ी नहीं की, ना कोई गाली गलौज मैं आपको करता हूँ। मैंने आपको एक बात समझाई थी, आपका जो भी अकीदा है, जो भी मिशन है, जिस भी मकसद के लिए आप सोशल मीडिया पे ये बहस मुबाहिसे करते हैं, इस मकसद को अगर आप हासिल करना चाहते हैं या पूरा करना चाहते हैं, अपने मिशन को कामयाबी की तरफ ले जाना चाहते हैं, जो भी आपका मकसद है, एक बात को ज़हन में रखें। देखें, आमर नज़ीर भाई रोक लेंगे इनको, उस्मान भाई को मैं रोक लूँगा, कोई और 4 बंदे यहाँ पे रोक लेंगे। मैंने आपको कहा था कि आप यंग आदमी हैं, आपके सामने ज़िंदगी पूरी पड़ी हुई है, तो आप इस मिशन को, जो भी आपका है, गलत है सही है वो एक अलग मामला है, वो आप ज़्यादा देर तक, ज़्यादा लंबे अरसे तक वो इसको लेकर चल सकते हैं, आप अपने गोल अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन आप भी इस बात को बेहतर अंदाज में जानते हैं कि मुसलमान कितनी जज्बाती कौम है, और अब तो आपका जो है ना वो मतलब कि अता पता जगह भी बहुत से लोगों को मालूम है। आप जवान आदमी हैं, आप क्यों अपने आप को मतलब के ट्रबल में डालना चाहते हैं? ठीक है, हमारे, मेरी सुन लें बात ना, मेरी बात पूरी सुन लें। हमारे लोगों की गलती थी, उस्मान मेरा भाई है, सबको पता है। मैंने सबको कहा कि भाई उस्मान ने गलती की है, उसको अगर रोका गया था कि आप बार बार ये सवाल ना दोहराओ, उसको चाहिए था कि ये सवाल ना दोहराता, रुक जाता। मैंने सबके सामने कहा उसकी गलती है, हालांकि मेरा वो भाई है। तो जहाँ तक हमारी गलती या हमारे भाइयों की गलती है, वो हम उनको रोकते हैं, रोकेंगे। लेकिन आप भी ये ना सिर्फ नज़रिया पूरा रख लें कि भाई आप हमें गाली देंगे तो हम डायरेक्ट, एक बंदा आपको गाली देता है, आप उसके अकाबर को गाली दे के पूरे 2 अरब मुसलमानों के दिल आज़ारी करते हैं। तो ये काम आप भी, इससे आप उसको जो आप कह रहे हैं उस्मान की गलती नहीं है, उस्मान की गलती नहीं है, नहीं है उस्मान की गलती नहीं है। अगर आप सर पांव नीचे रखें, उस्मान की गलती नहीं है। वजह मुझे आप भाईजान आप उतार नहीं सकते मुझे, क्यों उस्मान की गलती बता रहे हैं? उनकी गलती नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है अस्कानी साहब, मसला नहीं है। देखिए हमारी गलती बनी इसराइल भाई, मैं बनी इसराइल साहब, बनी इसराइल साहब देखिए, मेरी बात सुन के आप जाएं, आप बात करें, आपको इजाजत है। बनी इसराइल साहब, आपकी इज्जत है, आपका एहतराम है, लेकिन जब आपके हाथ में पावर हो ना, अगर आपको किसी ने गाली दी है, वाकईतन आपके दिल में शातमियत ना हो, आप उसको उतार देंगे, कहेंगे देखो ये जाहिल को मुझे गाली दी। भाई मुझे कितनी गालियां पड़ती हैं, डायरेक्ट उसको उतार के यही कहता हूं कि ये जाहिल है, बस। आप सीधा नबी को बाकायदा निकाल के गालियां और चिस्के ले रहे हैं, ये आप शातमियत चाहते हैं। वजह ताकत आपके हाथ में थे, कतआन नहीं है उस्मान की गलती, कोई सर को नीचे रखे या पांव को ऊपर रखे। आप चाहते हैं, आपने शुरुआत की, उस्मान ने आपको जवाब दे दिया, और आप क्या चाहते थे?
बस ख़त्म, बात ख़त्म हो जाती। भाई आप भी तो जवाब दे दो। आप कहते हैं कि मैं तो इल्मी गुफ्तगू कर रहा हूँ, ठीक है, उस्मान साहब का एक सवाल है ना। मिसाल के तौर पर हमारे वहाँ पर एक आलिम दीन हैं जिनका नाम है मिर्ज़ा, वो कहता है कि 4 ख़वातीन, अगर 4 शौहर वहाँ पर या जितनी भी चाहे वहाँ पर खातून को शौहर मिलेगा, तो सवाल तो बनता है। अच्छा ठीक है, अगर कोई ये कहे क्या आपके वालदा को भी मिलता है? भाई शरीयत पे आप तान कर रहे हैं, तो जवाब दो। इस पे आप नबी को गाली देंगे? ये सवाल है, इस सवाल का बर्दाश्त करो, इसका जवाब दे दो। जवाब आपके पास नहीं है। लगा रहे हैं आप, किस नबी को गाली दी है? नबी अलैहिस्सलाम को गालियां नहीं दी आपने? बताए ना, बताए ना। मैं आपके रिकॉर्डिंग आपके पास बिल्कुल है, हाँ पेश बिल्कुल है। शादी किस तरह से हुई, ये किया था नबी अलैहिस्सलाम। एक मिनट सुन लीजिए। नबी अलैहिस्सलाम के वालिदा का नाम लेकर आपने गालियां दी। पेश करें ना, वीडियो पेश करें। मैंने आमिर साहब को पेश की है, आमिर साहब गवाही दे के दिए नहीं दिए? पेश करें, क्या गाली दी है? सबको पता चलना चाहिए ना क्या गाली दी है। अब भाई देखिए न्यू साहब, आपको अगर अल्फाजों से नहीं, आपको अच्छी तरह खेलना आता है। मैं आपको गाली का जवाब गाली भी नहीं दूंगा। उस्मान साहब की कोई गलती नहीं है। वजह इसकी ये है कि उसने एक जवाबी आपको सवाल किया है, सवाल किया है, उसका जवाब दे दो। या आपके पास वो जवाब नहीं है, ठीक है, आप उसको उतार दो, कहो ये जायल है। जो गाली आप समझते हैं कि आपको दी, वो गाली उसको दे दो और ख़त्म कर दो मसले को। आपने ऐसा नहीं किया, ताकत आपके पास थी। हमने अशकानी साहब पहले भी बोला है, पहले मैं बार आज फिर एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, इसको ज़रा नोट कर लें आप। मुझे अपनी ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं है किसी किस्म की भी, ना मुझे मौत से डर है, ना किसी किस्म की मुझे टेंशन है, ना कोई परवाह है। मुझे पता है जिस सफ़र पे मैं हूँ, मैं हो सकता है अभी मर जाऊँ, वैसे ही मर जाऊँ, नेचुरल डेथ हो जाए, मैं बाहर निकलूँ गाड़ी पे एक्सीडेंट हो जाए, वैसे मर जाऊँ, कैंसर का मर्द लाक हो जाए, वैसे मर जाऊँ, कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये बात तो मेरे जहन में कभी आई ही नहीं है। मेरे इधर आमिर भाई जान, मैं आपका एहतराम करता हूँ और इसी तरह मैं ज़िया साहब का एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं कभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि एक आदमी की जो है वो ख्वाहिश है कि शातियत करना, उसके सामने आप कहें कि उस्मान की गलती है। नहीं मानता मैं इस बात को। उस्मान ने सवाल किया, उनके अल्फाज सख्त हैं, जिस तरह से उनके अल्फाज सख्त है, मैंने उनको ड्रॉप किया। जाने दो, क्या बात करेंगे, खत्म हो गई बात। भी इसको बात तो पूरी करने देते हैं। क्या बात पूरी करेंगे भाईजान? वो कोई गाली तो नहीं दे रहा। खलीफा भाई ड्रॉप ना करें, ठीक है। खलीफा भाई, पूरी करना। खलीफा भाई आपके हाथ में यहाँ